वीडियो जेंटल योगा। तो सबसे पहले रोटेशन स्टार्ट करेंगे। रोटेशन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इस पे बैठ के भी आप ये कर सकते हैं। बॉडी का वर्कआउट, abdominal digestive system all are involved in this rotation. आज हम सुंदर टैपिंग सीखेंगे। हाउ टू डू टैपिंग। इसके पहले हम थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम। ओपन, open your legs, then up and down, tap on your under the knee, then tap. One tap on both the legs. Now then, come back to Shavasana. टैपिंग अभी बाकी है, जस्ट ये तो हम रिलैक्सेशन कर रहे हैं। एक बार सारी मसल्स रिलैक्सेशन। दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच योर होल बॉडी फ्रॉम टिप ऑफ योर टोज टू योर palm. Stretch, 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 and release. One more. Breathe in and stretch your whole body. Stretch, stretch, stretch from tip of your toes. Stretch your ankle muscles. Stretch your calf muscles. Stretch, stretch, stretch. Kneecap. Stretch your hips. Ball joint. Stretch your abdominal, pelvic area, lower back, middle back, upper back. Stretch your arms, fingers, and palm. Stretch, 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 stretch. And release. Breathe out. Okay, deep breathing. One more time. Stretch. Stretch your toes to your palm. Stretch, 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 stretch. And release. Out. Open your arms on your shoulder area. And then put a right foot near the knee and turn towards left. Turn towards left. Look towards your right palm. With the palm support, left palm support, try to push your knees down. Just hold 1, 2, 3, 4, 20 down. Feel the stretching on your outer hip, outer area of hip of your right leg. Gently and massaging, feeling the massaging effect in that area. Now come back to center. Then again, left foot near the right knee and press towards your right side from your right palm and look towards your left palm. Just lift your arms up, gently press it, press your left knee towards your right side and feel the strengthening, stretching muscles of your hip, left hip outer part. Feel the strengthening into your hamstring muscles, hip joint. Gently hold there and feel the strengthening. Hip, arm, that is the turn up of your hamstring muscles.
तो भी हिप जॉइंट से आपकी मसल्स आ रही है उसकी स्ट्रेंथ में। तो देखिए, पवन मुक्तासन, राइट वे अप, left leg towards your chest, gently push towards your chest and hold for some time, few seconds. Press it, press it, press it. Exhale and feel the soothing effect on your back and release. Change. Right leg press towards your chest and focus. Change on your back. Feel the tona on your back. Strengthening on your back. Seconds remain here and feel the strengthening of your back muscles. Then release. Open your legs, hip joint, back, and hold, strengthening. Hip up and hold, and just 20 seconds. Belly, like increase pose, squeeze your buttocks, hold, release. Now turn right side and with the palm support, go in sitting position. Now, rubbing and tapping का full session करेंगे. How do we do rubbing and tapping? About the palm, सारे मसल्स को रीजनरेट करने के लिए हम पहले रबिंग करते हैं दोनों हाथों की. अच्छा, जो भी हमारे देख दोनों हाथों में हमारे सारे ऑर्गन्स का सिंबल है, सारे ऑर्गन्स की मसल्स जा रही है. तो बाहर अप करने से पर्टिकुलर उस अंग पर भी उसका इफेक्ट जाता है. अगर आपको नहीं मालूम है कि पर्टिकुलर अंग का एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ है, तो आप होल हैंड पाम रबिंग करते हो तो भी उसका इफेक्ट सभी ऑर्गन पे बराबर जाएगा और सारे ऑर्गन स्वस्थ होंगे, हेल्दी बनेंगे. तो रबिंग palm, then rubbing on your lower arm. रबिंग करने से लोअर आपकी फैट भी बर्न होती है. और अगर आप पतले हैं तो आप ऑयल मसाजिंग के साथ रबिंग कर सकते हो. रबिंग ऑन योर लोअर आर्म, elbow to wrist, rubbing on your upper arm. मैं 20 टाइम्स तक आपको बता रही हूँ, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं. अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, दर्द है, तो आप इसको 50 to 60 टाइम कर सकते हो. अदरवाइज 20 सेकेंड्स के लिए आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. सारी मसल्स रिजनरेट हो जाती है. एंड द पाम टूवर्ड्स बैक, बैक साइड में मसाज करेंगे पाम की. wrist to finger, tip of your finger and wrist completely मसाज. आपके पीछे आपके बैक आई हुई होती है, बैक का और पोस्टीरियर बॉडी का पार्ट होता है. नाउ लोअर आर्म, पूरा हमारा हाथ पूरा बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. रिस्ट टू फिंगर्स हमारे हेड वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. लोअर आर्म एल्बो टू रिस्ट हमारे
मिडिल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, लोअर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे अपर पार्ट को, मिडिल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एल्बो टू शोल्डर। आपके एब्डोमिनल से लेकर के नेक एरिया तक के कहीं भी कोई पॉइंट में दुखावा है तो यहाँ से हम करेंगे तो उस बॉडी पे इफेक्ट। इस तरह से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अप एंड एक्सिला, जहाँ हमारी सारी मसल्स की सब स्ट्रेचेस होते हैं, सारी मसल्स यहीं से निकल के बॉडी में जाती है। हम उसको भी टॉक्सिन्स फ्री कर रहे हैं। एंड साइड बैक, साइड और बैक, फर्स्ट फर्स्ट ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो टॉक्सिन्स फ्री बनेंगे वहां से। बेसिकली ब्लड के फ्लो को बढ़ा रहे हैं, ब्लड को, ब्लड वेसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, आर्टरीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगेन रब, fourth palm rubbing to fast start your organs, tone up and strength up your organs. Then lower arm, सीधा हाथ रखते हुए लोअर आर्म को रब करेंगे, एल्बो टू रिस्ट, अपर आर्म, रबिंग से ही मोस्टली आपका पेन चला जाता है, जो भी पेन है। तो बैक, यहाँ पे शोल्डर को भी रब कर देंगे। शोल्डर को भी रब करेंगे, इस साइड से शोल्डर को भी रब करेंगे। Back of the, so palm, right back of the palm, and then lower arm. Up and exhale. शरीर का कोई भी भाग छूटा नहीं रहता है इससे। सारे भाग की मसल्स बॉडी के हर पोस्चर से, हर साइड से आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। साइड ऑफ योर चेस्ट एंड साइड ऑफ योर ब्रेस्ट। इसी तरह से हम लेग पे करेंगे। जैसे हमारे दोनों हाथ में सारे बॉडी के ऑर्गन आते हैं, वैसे ही हमारे दोनों फुट में भी है सारे ऑर्गन्स। और ये जो हमने लोअर पूरे हाथ का किया, तो दोनों हाथों में और दोनों लेग्स में भी हमारे सारे मसल्स जा रहे हैं, तो हम उसको एक्टिवेट करेंगे। पहले लेफ्ट फुट, राइट फुट को लेफ्ट नी पे रखते हुए एक्टिवेट यूर ऑल बॉडी। बेसिकली हम बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं। लोअर पार्ट, फ्रंट ऑफ टॉप ऑफ द फुट, टॉप ऑफ द फुट, ये जो हमारा मेटाटार्सल मसल्स है उसको मसाज करेंगे। हमसे भी आप कर सकते हैं इस तरह से रोटेट करते हुए आउटर साइड में, हमसे बाहर की तरफ, आउटर साइड में नीचे से ऊपर, तो ये भी हमारे रिलैक्सेशन करने में बहुत मदद करती है। नाउ एंकल रोटेशन, साइड ऑफ योर लोअर बैक, नी टू एंकल,
पर स्ट्रेन टू एंकल तक। नाउ मैं सबसे लोअर लेग का मेन पार्ट काफ मसल्स जो हमारी सेकंड हार्ट कहलाता है, ये हमारा सेकंड हार्ट है। इसको आप नी टू पोस्टीरियर लेग को नी टू एंकल तक पूरा रबिंग करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। तो आपको थ्रोम्बोसिस है या कोई भी प्रॉब्लम होती है काफ में, पिंडों में, पेन, तो ये सब इस तरह की मसाजिंग से ठीक हो जाएगा। ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है यहाँ हार्ट की तरफ। ओपन your leg and thigh massage knee to groin। जब भी हमें मालूम नहीं कि हम कौन से पॉइंट को रोज दबाएं, 15 मिनट अगर हम ये रोज एक्सरसाइज कर लेते हैं रबिंग की और टैपिंग की 15-20 मिनट का, तो हमारे सारे पॉइंट, सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं। नाउ बोथ द साइड ऑफ योर लेग, थाई, नी टू एंकल, नी पे रोटेशन के हिसाब से चारों तरफ रोटेट योर आउटर साइड ऑफ योर नी, के चारों तरफ। नाउ नी के नीचे पोस्टीरियर, दोनों हाथों से करने से आपके हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। जितना काम अपने शरीर से हम लेते हैं उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। साइड ऑफ योर थाई, लेटरल और inner। इसी तरह से हम फोल्ड करते हुए लेफ्ट फुट को मसाज करेंगे। सारे ऑर्गन को जनरेट करना है। हिल टू टो, किसी की हिल जैसे एड़ियां फटी हुई होती है तो उसमें भी ये मसाज बहुत फायदा करती है। हिल टू टो तक। टू फास्ट। टॉप ऑफ योर फुट, मेटाटार्सल मसल्स को अपने अंगूठे से नीचे से ऊपर लाते हुए आउटर साइड में घुमाते हुए रिलैक्स योर फुट। रिलैक्सेशन में सबसे बेस्ट रिलैक्सेशन होता है जिसके भी पाँव बहुत दर्द करते हैं, ज्यादा चल नहीं पाते, हिल में दर्द रहता है, तो ये मसाज जरूर करनी चाहिए। ये हमारी मेटाटार्सल मसल होती है वो, उसका रिलैक्सेशन होता है अच्छा से। नाउ रब completely toe to ankle and both the side of your ankle in rotation way. Left, lateral and inner, lower leg. For the side of your lower leg, knee to ankle. From neck, chin, up and down, and calf muscle. पूरी तरह से सेकेंड हार्ट ब्लड का फ्लो को बढ़ाएंगे तो हार्ट की तरफ नहीं जा पा रहा है। वेरिकोज वेन, थ्रोम्बोसिस, सब में ये बहुत फायदे करती है ये मसाज। मतलब होने ही नहीं देती। अगर आप रेगुलर इसको कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम, तो वेरिकोज वेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो नहीं होगी। नी, नी के आपको इन रोटेशन वे में और अंडर द नी, अपर थाई एंड नी टू ग्रोइन। कोई मसाजिंग वर्कआउट
साइड ऑफ योर आई, लेटरल एंड इनर, and under the completely knee to hip. Now, अभी हम अपने चेस्ट के नीचे रिब केस की वहां मसाज करेंगे। पूरी बॉडी को हिला देना है, बस रिब केस के नीचे। देन रोटेशन इन एब्डोमिनल 20 to 40 टाइम। एब्डोमिनल मसाज आप ज्यादा देर भी कर सकते हो। अप एंड डाउन, नाभि के ऊपर नीचे अपने हाथ को घुमाते हुए मसाज करना। दोनों हिप रोटेशन में पीछे घुमाते हुए, एंड लोअर बैक। ज्यादातर दर्द यहाँ होता है, तो रेगुलर मसाज। आपको दर्द हो रहा होगा तब आपका हाथ अपने आप आ जाता है। तो अगर हम सुबह उठते से रेगुलर मसाज, यानी हम अपने शरीर को पैम्परिंग कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अगर प्यार से दिल से आप ये मसाज कर लेते हो तो आपका शरीर अपने आप रिजनरेट होने लग जाएगा, स्वस्थ होने लग जाएगा। हर अंग को ये लगेगा कि मुझे मेरी वैल्यू है। ये हमारा थाइमस ग्लैंड आया 5 उंगलियों से, उस सेकंड के लिए अपने थाइमस ग्लैंड पे हाथ रखने, अपने आप में आ जाए। अपने हार्ट को करेंगे मैसेज भेजे, प्यारा संदेश, आई लव। जितनी भी हार्ट बीट बढ़ी हुई होगी वो एकदम से बैलेंस हो जाएगी। जब हम पांचों तत्वों को बैलेंस करते हैं, तो हमारी पांचों तत्व, पांचों उंगलियां जो हमारे पांचों तत्वों को रिप्रेजेंट करती है, एकदम से आप शांति को महसूस करेंगे अपने अंदर। यहाँ से हम मसाज करेंगे जो गर्दन से होती हुई पीछे शोल्डर से लगे, ये पार्ट हमारा अभी बाकी है। तो इस तरह से, और बैक, शोल्डर टू चेस्ट, बैक, शोल्डर टू चेस्ट, आपकी डबल चिन को भी दूर करने में मदद करेगा। ये हमारे पूरे गर्दन की मसल्स को, थाइमस और हाइपोथायराइड, थाइमस और थायराइड एंड पैराथायराइड, तीनों ग्लैंड हमारे एक्टिवेट हो रही है। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये मसाज को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हमारे पेट की कोई भी प्रॉब्लम हमारे दांतों में भी है, दांतों में कैविटी सबसे पहले आती है, हमारे गट की वजह से आती है। गम में ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग गम, या गम में सूजा होना, या ब्लड का निकलना, रिसना। तो हम यहाँ से अपने हेड की, चेहरे की मसाज भी करेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आपको अगर रेगुलर आप फेस मसाज करेंगे तो आपको स्किन में ग्लो आ जाएगा, आपको ब्यूटी पार्लर भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरा रोटेशन एक बनाते हुए, चिन टू, आइस के नीचे तो काला काला हो जाता है, टेम्पल मसल तक ले जाए। हेड को पिंच करेंगे अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर से। तो फोरहेड मसाज, अप साइड, बोथ द साइड, मसल का कोई मसल तक लाए, आईब्रो के एंड तक लाए, तो आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम भी इससे दूर होगी।
जिसको गैस अपच माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है वो भी दूर होती है नाउ। नेक के दोनों साइड, नोज के दोनों साइड साइनेटिस साइनस की प्रॉब्लम है तो वो इस मसाज से दूर होती है। नाउ अंडर द नोज टिल, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, एंड देन जा लाइन। कैंची टाइप बनाते हुए दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से वो अपर मसाजिंग करेंगे। हमारे जा लाइन को कमिंग ब्लडिंग कम हो और स्वेलिंग इनकम सब में फायदा कर। दोनों हाथों का ऐसे वी शेप बनाते हुए दोनों उंगलियों का और कान के आगे पीछे दोनों साइड मसाज करेंगे। तो ये हमारे कानों में से जो भी मसल्स नीचे की तरफ जा रही है हेड से सारे मैसेज यहीं से ये जंक्शन से होते हुए नीचे जाते हैं। तो जो अंडर आर्म से, ईयर से, फिर यहाँ हमारे ग्रोइन है, ये सब जंक्शन है हमारे। यहाँ अच्छे से मसाज करें। अब कान की मसाज करें क्योंकि आपने देखा होगा जो सीट थेरापी होती है या फिर जो मैग्नेट थेरापी होती है ज्यादातर कानों के ऊपर रख के ठीक किया जाता है। तो कानों की अगर हम डेली मसाज कर लेते हैं अंदर और आउटर तो हमारे सारे ऑर्गन्स बैलेंस होते हैं। तो कुछ आपको टाइम नहीं, 2 मिनट का टाइम है तो आप कानों की मसाज कर लो। फुल बॉडी को मसाज करने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम है तो आप 15 मिनट की मसाज कर लो। और नहीं तो 5 मिनट की आप ईयर और फेस की मसाज कर लो या फिर अपने हाथों की मसाज कर लो, पाम पाम स्टिमुलेशन कर लो। ये इस तरह से हम कैसे भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते। कुर्सी पे बैठे तो अपने फुट की मसाज कर लो, कानों को बाहर की तरफ खींचेंगे, लोअर पार्ट को खींचेंगे। पैरालिसिस होती है तो सबसे ज्यादा हम यहाँ कान की मसल को खींचते हैं, इससे ठीक होता है हमारा हार्ट का, अंदर के डायबिटीज के मतलब पेनक्रियाज और अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, अंदर की मसाज करने से वो स्वस्थ है। बाहर आउटर एरिया में और पीछे हमारे सारे कान के मसल्स एकदम आपने देखा होगा एनर्जी महसूस हो रही है। अभी हम टैपिंग करेंगे। टैपिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले अपने हाथों से टैप 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 टैप, खुले खुले हाथ रख के भी कर सकते हैं या फिर फिस्ट बना के भी कर सकते हैं। तो हम फिस्ट से करेंगे। फिस्ट बनाते हुए पहले पाम टैपिंग, देन लोअर आर्म, सारे ब्लड के फ्लो को हमने पहले मसाज किया तो क्या हुआ, हमने ब्लड के फ्लो को बढ़ाया। अब टैपिंग करने से टॉक्सिन्स इधर उधर निकलते हैं। तो एल्बो टू अप एंड देन शोल्डर, शोल्डर नेक मसल के पास तक, टर्न द पाम बैक साइड। अभी मैं बहुत थोड़ा सा बता रही हूँ, अगर आपको ज्यादा दर्द है, पेन ज्यादा है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। अप साइड, नाउ अंडर द आर्म्स, एक्सिला, साइड ऑफ योर चेस्ट एंड साइड ऑफ योर वेस्ट। इसी तरह से टैप ऑन योर राइट पाम, पूरा टैप करेंगे। लोअर आर्म्स पूरी ताकत के साथ 2-3 बार, देन अपर आर्म 3 टाइम्स घुमा देना, अप डाउन अप एंड डाउन, देन अपर आर्म towards your neck, shoulder to neck. Now back of the palm, tap 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 tap, and back. Axilla, side of your chest and side of your breast. दोनों पाँव को एक साथ टैप करेंगे। पहले राइट लेग ले सकते हैं हम दोनों हाथों से तो और फास्ट हो जाएगा। दोनों हाथों से टैप करें फिस्ट बनाते हुए। पहले लेटरल पोजीशन ऑफ योर लेग, देन फ्रंट, दोनों हाथों की फिस्ट बनाते हुए, देन काफ मसल। काफ मसल्स में तो बहुत जरूरी है, आप इसको करोगे तो कभी भी पिंडलियों का दर्द नहीं रहेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा मसल्स
ब्लड का फ्लो जम जाता है, तो यहाँ ज्यादा टैपिंग करो। अंडर द नी, टैप योर अंडर द नी, साइड ऑफ योर नी, अपर थाई, the side of your thigh, and under the thigh, posterior thigh. Release. Put the on your left side, tapping on your left side, foot tapping, ankle tapping, lateral leg, lower leg, lateral and inner side, chin, up and down, tap, 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 the calf muscles, tap more. Yeah, ज्यादा टैपिंग करेंगे ताकि आपकी पिंडलियों का दर्द पूरी तरह से गायब हो जाए। यस, tap, 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 under the knee, outer the knee, in circulation motion, but high, lateral and inner, under the now भी हमने हिप को करेंगे, हिप बैक एंड लोअर बैक रिलीज। अभी टैप ऑन योर हेड, तो वहां हेड में हम मसाज फिंगर से करेंगे, पूरे फेस पे फिंगर से। अब जितना भी माइग्रेन दर्द हो रहा हो वो ठीक हो जाएगा। माइग्रेन का पेन है तो आप रेगुलर टैपिंग करें अपने हेड पे। आप चाहे तो यहाँ पे फासला ले सकते हैं, यहाँ पे अपना कार्पल मसल्स पे हमारा ये लगा लें, टेम्पल मसल्स पे हथेली का मूल लगाते हैं ऊपर, एंड देन यहाँ टैप, टैप ऑन योर बैक, पीछे जहाँ आपके नेक की मसल स्टार्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है, वहां तक अपने हाथों को ले जाओ और उंगलियों से टैपिंग करेंगे फास्ट। आप टैपिंग करते समय अच्छा फॉर्मेशन भी दे सकते हो हेड की मसाज में। Even though I am stressed, I release my stress, release it. Even though I am having tension, I release it. Even though I have a ये टैपिंग के साथ अफर्मेशन देने से और ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है। Even though I have a migraine, I release it. I accept it, I release it. EFT टेक्निक आपने सुना होगा, तो EFT टेक्निक में इस तरह की अफर्मेशन बोले जाते हैं। इवन दो आई हैव स्ट्रेस, आई एक्सेप्ट इट। कोई भी चीज को स्वीकार कर लेना, उस चीज से रिलीज हो जाती है, उस चीज से मुक्ति मिल जाती है। तो कोई भी हम घर में रिलेशन है और उसको स्वीकार कर लेते तो भी हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। वैसे ही हमारे पेन को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं और एक्सेप्ट करते हुए उनको मसाजिंग कर रहे हैं तो ठीक हो जाता है। तो इवन दो आई हैव स्ट्रेस, इवन दो आई हैव माइग्रेन, आई रिलीज इट। पूरे हेड में इस तरह से मसाज कर लें और हेड पे मसाज करें, फिंगर्स टैपिंग ऑन योर forehead, and then under the eye, release your stress on your forehead, jawline, under the nostril and chin. Even though I have a stress, I release it, I accept it, I release it. Even though I have a stress, I have a pain, I accept it, I release it. टैपिंग के जो EFT टैपिंग के पॉइंट है वो यहाँ है फोरहेड में, सेंटर में, देन your temple muscles पे, then under the nostril and under the chin, then both the shoulder, under the shoulder and wrist यहाँ पे होता है।
Even though I have a stress, I accept it, I release it. Even though I have a stress, I accept it, I release it. ये जो हमारा पॉइंट होता है इस जगह होता है. इवन दो आई हैव a stress, I have a pain, I accept this, I release. Even though I have a pain, I have a stress, I accept it, I release it. And then arm, even though arm से नीचे, even though I have a stress, I accept it, I release it. I'm feeling relaxed. Even though I have a stress, I have a pain, I accept it and I release it. I feel relaxed. ये हमारा एफटी टैपिंग भी हो गया. और हेड के साथ यू आर फीलिंग मोर calmness and soothing effect into your mind also. तो बहुत ज्यादा आपको रिलैक्सेशन हो रहा होगा. इसके बाद आप थोड़ी देर शवासन में लेट सकते हैं. फिर आप अपना डेली रूटीन का काम कर सकते हैं. जो भी आपने ब्लड के फ्लो को बढ़ाया है और उसको बॉडी को रिलैक्स करें. ओपन कर लें, शवासन में लेट जाएं, पतेली आकाश की तरफ. और फोकस ऑन योर ब्रीथ. आपका जब सांस ले रहे हो पेट फूल रहा है, जब आप सांस छोड़ो के स्पाइन की तरफ जा रहा है, इस तरह से अपने एब्डोमिनल के मूवमेंट को देखने की कोशिश करें हर सांस के साथ. 3 to 4 टाइम हम अपने इस मूवमेंट को देखेंगे. पूरी बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को फैलता हुआ देखिए कि आपकी पूरी बॉडी रिचार्ज हो गई है. टैपिंग से, मसाजिंग से you are feeling more energetic. Each and every muscles are energized and become relaxed. एक ही आपको देखते रहे abdominal and एक बार स्ट्रेच करेंगे, होल बॉडी स्ट्रेचिंग. एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें and stretch your whole body. Stretch, 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 stretch. That goes left. The palms are up. एक पाम को आगे रख के बालासन की पोजीशन में जाए like that. ये हमारी बालासन की पोजीशन. आपकी बॉडी और रिलैक्स बनती है इस पोजीशन में. And then with the palm support coming in sitting position. Have a nice day. अच्छा हमारे साथ टैपिंग और एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स के लिए आप हमारे हमारे साथ जुड़ते रहे. थैंक यू.